عمران خان کی تحریک انصاف حکومت بنانے جا رہی ہے. یہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا، یہ روڑنا پٹنا ڈالیں گے. 2023 میں بھی یہی کہیں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے. اگلے الیکشن میں پوری کوشش ہوگی کہ سندھ میں بھی پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوم کو ایک اور الیکشن مبارک ہو. آزاد کشمیر کے انتخابات میں ایک بار پھر بلے، تیر اور شیر کا تگڑا مقابلہ ہوا. بلہ ایک بار پھر جیت گیا اور شیر دھاڑتے دھاڑتے رونے پر آ گیا. پھر وہی نتائج ماننے سے انکار، پھر وہی دھاندلی کا رونا، پھر وہی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کی گیدڑ بھپکیاں. تحریک انصاف اور عمران خان کو مبارک ہو. وفاق پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور اب آزاد کشمیر بھی بآسانی فتح کر لیا ہے. اب باقی بچا صرف سندھ. تو جس دن سب بڑوں نے ٹھان لی تو وہ بھی نئے پاکستان کا حصہ ڈکلیئر کر ہی دیا جائے گا. ناظرین، آزاد کشمیر کا الیکشن بہت سے سوالوں کے جواب دے گیا ہے. اکثر ذہنوں میں آتا تھا کہ کیا جلسوں کا سائز میٹر کرتا ہے، تو جواب آیا ہے نہیں. جیسے جوڑے آسمانوں پر بڑھتے ہیں نا، بالکل ویسے ہی ہمارے ہاں حکومتیں مقدر میں لکھتی جاتی ہیں. کیا حکمرانوں کی کارکردگی جیت ہار میں کردار ادا کرتی ہے؟ تو اس کا جواب بھی نفی میں آیا ہے. مہنگائی، بے روزگاری، انفراسٹرکچر، تعلیم، صحت کی صورتحال جیسی بھی ہو، ووٹ کی پرچی اپنا مقررہ امیدوار ڈھونڈ ہی لیتی ہے. آزاد کشمیر الیکشن کے نتائج مریم نواز کے اس دعوے کو بھی جھوٹا کر گئے جس میں انہیں لگتا تھا کہ سیم پیج اب پھٹ چکا ہے. نہ صرف پھٹ چکا ہے بلکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہواؤں میں اڑ گیا ہے. جواب بڑا تسلی بخش آیا ہے کہ الحمدللہ پیج بھی سیم ہے اور فوکس مزید واضح ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی کو مارے جانے والے تانوں کا جواب بھی آ گیا ہے. کہا جا رہا تھا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو گئی ہے اور اب انعام کے طور پر انہیں آزاد کشمیر کی حکومت دے دی جائے گی. ان سیاسی تانوں کا جواب بھی خوب آیا ہے اور اب ہم جان گئے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک چوائس پارٹی ہرگز نہیں ہے. مسلم لیگ نون سے متعلق بھی حکومتی دعووں کا بھرپور جواب مل گیا ہے. کہا جاتا تھا کہ مریم نواز خاموش ہو گئی ہیں تو مطلب ان کی بھی ڈیل پکی سمجھیں. گاہے بگاہے بتایا جاتا تھا کہ لندن میں بیٹھے میاں صاحب کے معاملات طے پا گئے ہیں. تو ان سب الزامات کا جواب نون لیگ کی محض 6 نشستوں کی صورت میں 2 ٹوک آ گیا ہے. جواب آ گیا ہے، جی ہاں جواب آ گیا ہے کہ مریم نواز ہوں یا نواز شریف، دونوں ڈیل کے متلاشی نہیں اور نہ ہی کوئی چوائس بننے کو تیار ہے. اب رہی بات اقتدار کی تو میں کیا کہوں میں حکومت خود بتا رہی ہے کہ پاکستان میں اقتدار کیسے اور کس کو ملتا ہے. آج ہی کے دن ہمارے وزیر داخلہ شیخ رشید ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعتراف کر رہے تھے کہ نواز شریف کو اقتدار تب تک نہیں مل سکتا جب تک وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات سے گریز نہیں کرتے. ملک کا وزیر داخلہ آج قوم کو بتا رہا تھا کہ نون لیگ کا مستقبل ان کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کی وجہ سے تاریک ہے. آپ نے کا ایک ہی ایجنڈا ہے، وہ اینٹی آرمی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی عمران خان. جو جی ایچ کیو کے گیٹ کی پیداوار ہے، جو فوجی نرسریوں سے نکلا، اسی فوج کے خلاف بدزمانی کرتا ہے. ساری زندگی لگا رہے یہ لوگ اقتدار کا منہ نہیں دیکھ سکیں گے، ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے. سو لیڈیز اینڈ جنٹلمین، آج کے پینلسٹ آپ کے سامنے عالیہ حمزہ صاحبہ سٹنگ ایم این اے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید. سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب ہیں، رہنما پی ایم ایل این کے. السلام علیکم، خوش آمدید. اپوزیشن بینچ سے حیدر زمان قریشی صاحب اپوزیشن بینچ سے رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. سب سے پہلے تو میں اپوزیشن سے شو کا آغاز کرنا چاہوں گی. حیدر زمان قریشی صاحب، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے حامی بھری شو میں آ جانے کے لیے ان دا لاسٹ مومنٹ فرسٹلی. اینڈ سیکنڈلی حیدر بھائی، مبارک میں آپ کو دینا چاہتی ہوں. 11 سیٹس، مطلب تھوڑے سے آپ لوگ ڈارک ہارس تھے، اتنی ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی تھی. میں عوام کی بات کر رہی ہوں، آپ لوگ تو خیر شاید پوری کی پوری 45 سیٹس ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے، لیکن 11 سیٹیں ملی، ناٹ بیڈ ایٹ آل. لیکن سر، گلگت بلتستان والا ماڈل یہاں پر بھی دیکھا گیا. کیا ماڈل میں کہہ رہی ہوں کہ وہاں پر بھی اپوزیشن کا ووٹ ڈیوائیڈ ہوا. اگر پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کا ووٹ اکٹھا کرتے، یعنی اپوزیشن کو گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ ووٹ پڑا تھا، اگر وہ ووٹ اکٹھا کرتے تو obviously آپ کا ووٹ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ ہوتا اپوزیشن کا. لیکن کیونکہ اپوزیشن کا ووٹ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے، وہ یہاں پر بھی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے. تو سر، اس سب کا بلیم اپنی ہار کا یا کم سیٹیں جیتنے کا آپ عمران خان صاحب پر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ ہی از گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ
person to be blamed for this? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बीनेश। देखिए, एजे के इलेक्शंस में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हुई हैं, जहाँ पे धांधली, इलेक्शन लॉज की वायलेशन, बदज़बानी, फायरिंग और पैसे की सियासत बहुत नज़र आई। वहाँ पे पीटीआई ने जिस तरह कानून को रौंदा, वज़ीर आज़म की सरबराही में अली अमीन गंडापुर और उनके वज़रा ने जिस किस्म की इलेक्शन कैंपेन की, वो यकीनन काबिल मज़म्मत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो इनके किराए के तर्जुमान जुगतें लगाते थे और फिक्रे कसते थे कि इनके तो 8 कैंडिडेट हैं और उनको मुंह की खानी पड़ी, हमारे 8 नहीं थे, 45 सीटों पे कैंडिडेट लड़ रहे थे। दूसरी बात यह है कि हमने बहुत एक अच्छी फाइट दी है और हम समझते हैं कि नताइज जो काउंटिंग के वक्त के बाद जिस तरीके से उसमें तातुल आया, उसके ऊपर भी मीडिया ने और बहुत लोगों ने सवालात उठाए और सीटें आनी रुक गई और उस पर यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और हमारे अभी भी हम समझते हैं 4 से 5 सीट्स जो हैं उनके रिज़ल्ट्स तब्दील किए गए हैं। हम जो समझते थे वो 15 प्लस या 16 सीटें थीं। अब आपको मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो कि शायद आपके नाजरीन के लिए एक नई चीज़ हो। 33 सीटें हैं जनरल एजेके की और 12 सीट्स वो हैं नॉन डेवलपमेंट एजेंडा सीट्स, जिसे साइड पे रखा हुआ है पाकिस्तान में आइन और ये कानून बनाने वालों ने इलेक्शन को मैनेज करने के लिए। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आउट ऑफ द 45 सीट्स, जो 33 सीट्स हैं एजेके के अंदर, उनमें से पीटीआई को नहीं मालूम कि ये कितने जीते हैं, लेकिन मैं आपके शो में इनको बता देता हूं कि इन्होंने सिर्फ 16 सीटें जीती हैं, यानी ये सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले सके मेनलैंड में। और जो 12 सीटें पाकिस्तान में हैं, जहां पे ठप्पे पे ठप्पे लगा के और वोट चोरी किए गए हैं, वहां से ये 9 सीटें जीत गए हैं और 2 सीट्स नून लीग जीती है और 1 पीपल्स पार्टी। और मेनलैंड कश्मीर में जहां बैटल ग्राउंड था, आपने भी कवर किया, दीगर चैनल्स ने, वहां पीपल्स पार्टी ने 10 सीट्स ली हैं और मुस्लिम लीग ने वहां 4 सीट्स ली। तो देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनका भरपूर मुकाबला किया है और कश्मीर की आवाम ने अपने मफादात को देखते हुए वोट दिया है। लेकिन हम ये कहना कि हमने 3 सीट से अब 11 सीट्स की हैं और स्पेशल सीट्स के बाद हम सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी होंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर हम मिल के इलेक्शन लड़ते हैं, क्योंकि हम लड़ नहीं सकते, हमारी आइडियोलॉजी फर्क है, हमारा एजेंडा फर्क है, हमारा रोड मैप। और आपने देखिए कि हमने एक गवर्नमेंट इलेक्टेड वहाँ थी आज़ाद कश्मीर में, उसको भी हमने उससे इम्प्रूव अपॉन किया। और पीटीआई जो इस वक्त ढोल बजा रही है, वो ढोल ज्यादा देर तक नहीं बजेंगे और इनकी जो कारकर्दगी है उसकी बुनियाद आप लोग ना बस ऑपोजिशन यही कहते रहे कि ज्यादा कर सर सिर्फ सिंध बचा है। मैं वापस आती हूँ, ये नून लीग किधर रह गई है भाई? राना साहब जरा अफनान साहब को फोन करें, नून लीग के बगैर ना जरा मजा नहीं आ रहा, उनसे तो पूछो। जी मैं आ रही हूँ हैदर भाई, आपके पास आ रही हूँ, वापस आती हूँ सर, जरा इस पे रीपोलिंग करवा दें, आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, हुकूमत को शामिल करने दे। आलिया हमजा अस्सलाम वालेकुम, बहुत 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 मुबारक हो। मतलब आपने लोगों ने तो इतनी बड़ी छलांग मारी, कल आपसे इलेक्शन डे पर भी बात हो रही थी, उसके बाद भी ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे गुफ्तगू हुई, फिर ये आज का प्रोग्राम भी प्लान हुआ। मतलब 2 सीटों से 25 सीट्स, नॉट बैड एट ऑल आलिया हमजा, आई मीन वेरी वेल प्लेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगी कि क्या वोट की ताकत से आप लोग आए हैं या अच्छे किरदार, अच्छे बयानात की वजह से आए हैं? क्योंकि आज वजीर दाखिला साहब ने जो कहा वो तो आपने सुना ही होगा ना, मैंने शो के शुरू में सुनवाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बीनेश। मैं तो सिर्फ एक शेर पढ़ के सारी बात का आगाज करूंगी, बहुत से लोगों के लिए इंक्लूडिंग आप भी। ज़त लाजिम है मगर दुख है कयामत का फराज, जालिम है कि अब के ना रोएगा तो मर जाएगा। इस वक्त हालात तो यही हैं। आपने मुबारक हमें दी, मुबारक तो आपको मरियम नवाज को देनी चाहिए थी, मुबारक तो आपको उनको इस चीज पर देनी चाहिए थी कि जिस इलेक्शन में वो जाएंगी पीएमएलएन के साथ यही होने वाला है। मैं तो एक ऑनलाइन पिटिशन स्टार्ट करने वाली हूं और उसमें मैं ये नून लीग वालों से इल्तजा करूंगी कि जी 2023 के इलेक्शन कैंपेन भी बिल्कुल वो जो ग्लास उठा के बीबी आ जाती है ना, उनके हाथों में दे दें। वो जितना झूठ बोलेंगी अवाम उनको उतना ही रगड़ा मारेगी। ये मैं आपको बता रही हूं, ये सारी झूठ
मक्कारियां। देखिए मेरी बात सुने, अवाम ने फैसला करना था। बड़ी मुझे इस चीज के ऊपर ना 2-4 चीजें जो मैं हमेशा ये कहना चाहती हूँ, 5 साल पीटीआई की हुकूमत थी आजाद जम्मू और कश्मीर में, या उससे पहले के 5 साल पीटीआई की हुकूमत थी, कौन सी कारकर्दगी? हमारी हुकूमत के तो 5 साल शुरू होंगे तो हमारी कारकर्दगी की असेसमेंट करें। फिर जब ये धांधली का रोना, मतलब हम तो अब इंजॉय करते और हम रात को तो इनको खुद ही कह रहे थे कि खुदारा जल्दी ट्रेंड स्टार्ट कर दो, पहले रिजल्ट्स आए, देर हो रही है, हमने सोना भी है ताकि हम जवाब तो दे सके इन लोगों को। ये रोना धोना पिटना, वो खान साहब कहते थे ना मैं इनको रुलाऊंगा, ये सारा सीक्वल चल रहा है। स्टार्टेड फ्रॉम 25 जुलाई 2018 से लेकर गिलगित बल्तिस्तान से लेकर 25 जुलाई आजाद जम्मू और कश्मीर, हैट्रिक। इनके लिए ये जो बात कर रहे थे ना, मतलब 33 सीट्स में से 16 सीटें लेना, इट्स अ मेजॉरिटी। मतलब ये किसको 2/3 मेजॉरिटी कहते हैं? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। फिर ये कह दे मतलब क्लीन स्वीप, सेंट्रल पंजाब क्लीन स्वीप, निकाल बाहर किया। यहाँ जो आके ये कहते थे सियालकोट से बाहर फेंक दिया, नारोवाल से बाहर फेंक दिया, गुजरांवाला से बाहर फेंक दिया, इनकी जो ये साउथ पंजाब की सीट्स थी, कैसी ये लोग बातें कर रहे हैं? मतलब अगर अपनी खिफत को इन्होंने ऐसे ही मिटाना है तो मिटाते रहे। बात एक बहुत ही छोटी सी है जो समझने की है। बेसिकली जब आप मदद के लिए इंडिया को बुलाएंगे, जब आप कश्मीरियों को गुलामाना सोच वाला कहेंगे, जब आप एंटी आर्मी बयानात देंगे, क्योंकि वहां की मेजॉरिटी तो है ही आर्मी के अंदर, वहां की मेजॉरिटी के लोग तो खुद जानों का नजराना पेश करते हैं। जब आप वहां पर जाकर ऐसी स्टेटमेंट देंगे तो आपका नरेटिव नहीं बिकना था। देखिए आप जब ये बात, मैं ये ऑपोजिशन के तनाजुर से नहीं पूछ रही, जनरली एक एंकर का एक पॉलिटिकल वर्कर से ये सवाल है कि इख्तिदार के हसूल का ताल्लुक बयानात से कैसे है। आज वजीर दाखिला भी ये कह रहे थे, मेरी समझ से बाहर है, मैंने इसलिए सुनवाया भी क्योंकि मैं ये समझना चाहती हूँ कि वोट हो, वोट की ताकत हो, उसका ताल्लुक बयानात से क्या है? बयानात जो चाहे मर्जी हो, अगर एक शख्स का वोट बैंक है और वोटर्स हैं तो उसका ताल्लुक आपके नैरेटिव बयानिए से, बयानात से कैसे? बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त बात की है बीनेश आपने, और इसीलिए आपको हम मानते भी बड़े हैं कि बड़ी अच्छी कभी कभी आप बातें करती हैं। मैं 2 बातों का जवाब देकर आपकी बात पर आती हूँ। 2 कारकुन शहीद किए पीपल्स पार्टी ने हमारे, ठीक है, इल्ज़ाम हम पे लग रहा है। ये हमें कहते थे ना, हिम्मत करते ना, 126 दिन का धरना दिया था जब धांधली के प्रूफ्स के साथ, ये 126 मिनट का भी बात नहीं कर सकते हमारे साथ। अब आए बयानात की, देखें ना सिर्फ बयानात बल्कि एक्शन। आप रॉ एनडीएस की बैक करते हुए हमदुल्ला मोहिब से मिले 2 दिन पहले, आजाद जम्मू और कश्मीर से पहले। आप कोशिश करें आर्मी के हाई ऑफिशियल्स और सिपाहियों के दरमियान लड़ाई करवाने की। आपका सारा नैरेटिव एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी आर्मी हो। बात इस चीज की नहीं है, डॉन लीक्स आप करें, मोदी के साथ आपका लव अफेयर हो, यानी राजस्थानी पगड़ियां आप उसके साथ एक्सचेंज करें, बगैर वीजों के आप उन्हें बुलाएं, हुर्रियत के कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से आप ना मिलें। मतलब ये तो अब पाकिस्तानी अवाम को अजबर हो गया है ये सारी चीजें। ऊफा डिक्लेरेशन से आप ले लें, नेपाल में खुफिया मीटिंग से जिसका बरका दत्त ने कहा था, आप इन सारी चीजों को देखें, इट्स अ ह्यूज थिंग जो ये चलती आ रही थी। प्लस उनकी आप कारकर्दगी, सिर्फ 1 सेकंड, कारकर्दगी की बात करें, सड़कें टूटी हुई, कोई पुल नहीं बना, कोई सेहत का इंतजाम नहीं, कोई स्कूल का इंतजाम नहीं। आपका मतलब, मुझे कल मैं जब बात करी थी तो समवन टोल्ड मी, उन्होंने पर्टिकुलरली मुझे इलाका लिखवा और उन्होंने कहा वहां पर पुल ना होने की वजह से 5 लोगों की डेथ हो गई। और जब ये इस इलेक्शन कैंपेन के दरमियान इनके वजीर आजम साहब जनाजा पढ़ने गए तो पीपल वर क्राइंग और उन्होंने कहा हम आपको रिजेक्ट कर देंगे। सो ये नविश्ता दीवार था कि इन्होंने हारना था। ये लिखा हुआ था, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया, जी पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया हारना था कल। We'll figure out where PMLN is। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, वापस आएंगे, नून लीग से बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स आगे डिस्कशन को लेकर जाएंगे। We'll be back in a bit।
ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं वेरी ऑनरेबल हैदर जमान कुरैशी साहब रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वेरी ऑनरेबल आलिया हमजा साहिबा रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड वेरी ऑनरेबल सेनेटर अफनानुल्लाह साहब रिप्रेजेंटिंग PMLN। फाइनली अफनान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अफनान बहुत शुक्रिया, बहुत देर कर दी भाई, लेकिन एनीवेज लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, सीधा सवाल आपके सामने रखूंगी। सर अफनान साहब, मतलब मुझे ये बताएं कि क्या जो कैंडिडेट है किसी भी इलेक्शन में वो ज़्यादा मैटर करता है, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल किसी भी इंतखाब में ज़्यादा मैटर करता है या फिर पार्टी लीडरशिप का? जैसे फॉर दैट मैटर मुश्ताक मिन्हाज साहब हैं आपके, बाग के कैंडिडेट हैं, तीसरे नंबर पर आए, वो ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक स्टेटस पे भी उन्होंने लिखा वो मुतमईन हैं, वो अपनी शिकस्त को तस्लीम कर रहे हैं, हालांकि वो तीसरे नंबर पर आए हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी लीडरशिप लाहौर में बैठ करके मरियम नवाज साहिबा वो कह रही हैं कि जी वो इन इंतखाबात को नहीं मानती। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा ने बहुत ज़बरदस्त एक कैंपेन करी AJK के अंदर और उसकी बहुत ज़्यादा उनको पज़ेराई मिली। हमने कभी इतने बड़े इलेक्शन, इतने बड़े जलसे किसी और लीडर के होते हुए नहीं देखे AJK के अंदर जितने मरियम नवाज साहिबा के हुए। और इस हुकूमत के ऊपर और इस हुकूमत के जितने लोग हैं उनके ऊपर मरियम नवाज का खौफ जो है वो तारी है। ये हर वक्त हर जगह मरियम नवाज ही कर रहे होते हैं। हमें बल्कि मरियम नवाज इतना नहीं की बात करनी पड़ती जितने ये लोग कर रहे होते हैं हमारे लिए। तो ये इन इट सेल्फ इनका खौफ जो है वो शो करता है कि ये इनको खौफ है कि ये मरियम नवाज की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी और इमरान खान साहब जो है वो डिक्लाइन पे हैं, उनकी बढ़ रही है और इवेंचुअली क्या कहते हैं ये टाइड विल टर्न, और यही सारा का सारा इनका वो है। अब AJK के इलेक्शन के अंदर जो है वो सारा पाकिस्तान जानता है कि जो विफाक में हुकूमत होती है वो AJK में बना लेती है। अगर ये इतने बड़े चीते हैं तो 12 में से 11 ज़मीनी इंतखाबात क्यों आ रहे हैं? अगर इतने ही लोग इनसे मोहब्बत करते हैं तो इनको लोगों ने अंडे और टमाटर क्यों मारे जब ये गए थे आज़ाद जम्मू कश्मीर? अगर ये इतने अच्छे हैं, इतनी इनकी ज़बरदस्त गवर्नेंस है तो फिर ये ना होता ना। बात ये है कि जिस दिन इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, बैसाखियों की सपोर्ट के बगैर इमरान खान नज़र भी नहीं आएगा, मरियम नवाज इतनी आगे होगी ये नज़र भी नहीं आएगा कहीं पे। ये हमारा मुकाबला ही नहीं है इनसे। ये तो ज़बरदस्ती या कहते हैं वो सिलेक्टेड या कहते हैं बूट पॉलिश करके सुबह शाम ये यहाँ पहुँच गए। इस मुल्क की बदकिस्मती है। भाई आलिया हमजा साहिबा और PTI तो ये कह रही है कि भाई बीनश आप मुबारकबाद मरियम नवाज को दें, क्योंकि वो जिस कैंपेन में जाएगी ना नून लीग का ये हाल होगा। आप कह रहे हैं कि जी मरियम नवाज इतनी आगे है कि ये लोग उस तक पहुंच नहीं सकते। नहीं देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि 12 में से 11 ज़मीनी इंतखाबात हारेंगे नहीं हारे। सवाल बड़ा सीधा सा है, हारेंगे नहीं हारे, इसका जवाब आपके पास है। देखें AJK के अंदर इन्होंने जाके हमारे पहले लोग तोड़े और उसके बाद इन्होंने वहाँ पे लोगों से वादे किए। PSDP का बजट सारा विफाक के पास आ गया कंट्रोल। उसके बाद इन्होंने लोगों को वहाँ पे बेसिकली जो है वो किया, साथ ऑन द डे ऑफ इलेक्शन वो मैनेजमेंट की। इन्होंने सीटें निकाल ली। इसमें हमारी कोई 7-8 सीटें ऐसी हैं जो इन्होंने मैनेज की हैं जिसमें 50, 100, 400, 500, 600 इस तरह वोटों का फ़र्क है। अब वो सारी की सारी मैनेजमेंट हमें मालूम है इन्होंने कैसे की है। लेकिन इंशाल्लाह ये इस तरह के मामलात तभी तक देखिए, इमरान खान जो है ना वो बैसाखियों के बगैर नहीं चल सकता। बस इमरान खान का अपना कुछ नहीं है, वो उसको सिर्फ एक काम करना आता है, बूट पॉलिश करना। आपसे ताल्लुक भी बड़ा अच्छा है, आपसे हम बड़ी खुलकर सियासी गुफ्तगू भी करते हैं, चाहे प्रोग्राम हमारे रेगुलरली हो या ना हो। मुझे एक बात बताएं, अपने दिल पे हाथ रख के, हुकूमत आपकी है वहाँ पर, इंटरिम सेटअप तो आए नहीं, चले आप तो ऑब्वियसली PTI बनाएगी, लेकिन मैं से जो पूरा इलेक्शन जो पूरा हुआ, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव जो पूरा सेटअप था, वो तो ऑब्वियसली PMLN का ही था ना, क्योंकि आप लोगों की हुकूमत थी। व्हाई आर यू ब्लेमिंग इमरान खान फॉर दैट? देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो 2016 में पीपल पार्टी का था, जीता कौन? 2011 में जो है वो 2011 में जो है वो काफ लीग का मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, कौन जीता? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव, देखें विफाक में जिसकी हुकूमत होगी, जम्मू कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में उसकी हुकूमत आती है, इस मुल्क की तारीख है। क्योंकि ज़ाहिर लोगों के मफादात हैं, लोगों को प्रोजेक्ट चाहिए, रोड चाहिए, वो उन्हें मालूम है विफाक से उन्हें मिलेंगे नहीं अगर हुकूमत किसी और की आ जाएगी। और फिर उसके ऑन टॉप ऑफ दैट आप देखें इनकी 2 सीटें थी 2016 में। हमने इनकी तमाम तर रिगिंग, तमाम तर इनकी 2 नंबरियों के बावजूद 6 सीटें ली हैं और हम कोई 7-8 सीटें ऐसी हैं जो इन्होंने चंद सौ वोटों से हमें हराया है। वो अगर आप अकाउंट फॉर कर लें ये इनकी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं बनती। ये तो सारी इन्होंने मैनेजमेंट कर ली है इनका। लेकिन ये जो इक़्तिदार होता है ना, जब ये आपके पास होता है तो आपको लगता है हमेशा रहेगा, लेकिन एक दिन इमरान खान का भी आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग तो और वो ऐसा भगाएंगे मुस्कों के साथ दुनिया देखेगी। नया सिलेक्टेड तैयार होने वाला है, नया सिलेक्टेड चुन लिया गया है, पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ?
آپ نے پیپلز پارٹی کا بھی رزلٹ دیکھ لیا. ذرا ایک ہی الیکشن میں آپ کو 2 باتوں کے جواب مل گئے. عمران خان صاحب کا سیم پیج جو پھٹا ہوا تھا وہ بھی پتہ چل گیا کہ پھٹا نہیں ہوا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیل ہو رہی ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم بننے والی ہے نہیں بننے والی, یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا. ایم آئی رائٹ سر؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم پیپل پارٹی بننے والی نہیں بننے والی یہ تو پیپل پارٹی کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ اس کا جواب دیں گے. میں اس طرح کا الزام ان پہ ابھی نہیں لگاؤں گا. الزام تو آپ لوگ لگاتے ہیں, آپ کی لیڈرشپ لگاتی ہے سر, آپ کی لیڈرشپ لگاتی ہے یہ الزام. میں دیکھیں وہ کوئی انسیڈنٹ ہو, کوئی ایک پرٹیکولر انسیڈنٹ ہو, اس کے اوپر ہم نے بات ضرور کی ہے, اس کے اوپر اگر آپ کہیں گے میں بھی بات کر لوں گا. لیکن ہماری خواہش ضرور یہ ہے کہ پیپل پارٹی اپوزیشن کے اندر جو بھی ہمارا لوزلی کیا کہتے ہیں ایک الائنس ہے, اس کو الائنس ان وے کہ اپوزیشن ایک سائڈ پہ, وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ رہے اور معاملات اچھی طرح چلائے جائیں. ہم نہیں چاہتے کہ پیپل پارٹی کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں خراب آل رائٹ. حیدر زمان قریشی صاحب, پی ایم ایل این نہیں چاہتی کہ ان کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہوں, پاکستان تحریک انصاف کیا سوچتی ہے؟ پلیز دونوں چیزوں کو ذرا ایڈریس کر دیجئے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے, کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ, جو کیوریوسٹی بھی ہے اور جو ہمیں سیٹ اپ نظر بھی آ رہا ہے کہ اونلی سندھ وہ صوبہ صرف رہ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے جس کو ابھی تک فتح نہیں کیا, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور وہ ہے سندھ. تو سر آپ اپنی پرفارمنس ٹھیک کر لیں سندھ میں. بڑی اچھی بات کی, اب مجھے جواب دینے دیں. ہم اپنی پرفارمنس کریں گے 2018 سے شروع ہو جائیں, جب سے فواد چودھری صاحب سندھ میں گورنر راج لگا رہے تھے, پھر فیصل واڈا لگانے گئے, پھر عمران اسماعیل لگانے گئے. ہم ہر 6 مہینے بعد آپ نے سندھ فتح کرنا تھا. وہ سندھ فتح کرتے کرتے یہ ہو گیا کہ این اے 242-49 میں جو اپنی سوڑی ہوئی سیٹ ہے اس پہ بھی یہ 6 نمبر پر آ گئے. اب یہ 6 نمبر سے سندھ فتح کریں گے یقیناً, یہ تو وقت بتائے گا. جو وہاں پہ حالات اور واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے ہے, یہ صرف دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ہم پی ایم ایل نواز کے ساتھ ایک اپوزیشن کا ورکنگ ریلیشن چاہیں گے, اور ہم آپ کے پروگرام میں ایک بہت اچھی شخصیت ہے, ان کو بھول کے ان کا ذکر کرنا, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے آزاد کشمیر میں الیکشن لڑا ہے. پورا میڈیا جو ہے خاموش ہے. جیسے ہی انہوں نے بدین میں پی ٹی آئی کے جی ڈی الائنس کے ساتھ مل, یہ بھی ضروری, اس پہ بھی آپ ایک پروگرام ضرور کریے گا. تیسری بات عالیہ حمزہ نے اچھی کی, اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل. انہوں نے کہا کہ ہم نے 9 سیٹیں لی ہیں, 12 میں سے پنجاب میں جو مارکا مارا ہے, اتنا مارکا مارا ہے کہ مارکا مارتے مارتے میاں والی جو وزیر اعظم کا حلقہ ہے وہاں پی ٹی آئی کو 1 ووٹ نہیں ملا. یعنی 9 سیٹیں پنجاب میں یہ لے گئے اور وزیر اعظم کے اپنے حلقے میں ان کو ووٹ نہیں ملا. یعنی دھاندلی کرتے کرتے اپنے حلقے میں بھی ووٹ ڈلوانا بھول گئے. تو بات یہ ہے کہ کارکردگی کی بنیاد جو ہے وہ آپ نے مین لینڈ آزاد کشمیر میں آپ نے دیکھنا ہے, وہاں چیف سیکرٹری کے پاس سب پاور ہے, وہاں وزیر اعظم ایک چپڑاسی کا ٹرانسفر نہیں کر سکتا. رولز آف بزنس پڑھیں. جو دھاندلی انہوں نے کی ہے وہ پاکستان میں مہاجر سیٹوں پہ کی ہے. اور یہ بھی ایک عجیب مذاق ہے بینش کہ جو پاکستان میں کشمیری رہتے ہیں جو ووٹ کہتے ہیں سو کالڈ, وہ آزاد کشمیر کی لیجسلیچر کے لیے ووٹ کرتے ہیں, لیکن آزاد کشمیر حکومت ان کے اوپر کوئی فنڈز خرچ نہیں کر سکتی, اور وہ پھر بلدیاتی انتخابات میں پاکستان میں ووٹ کرتے ہیں, وہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں ووٹ کرتے ہیں. یعنی ایک بندہ سال میں 3 باری ووٹ کرتا ہے. تو یہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل جو ہے نا ڈائمنشن غلط ہے, اس پہ الیکٹورل ریفارم کی بات ہونی چاہیے. اور میں آپ کے پروگرام سے مطالبہ کرتا ہوں اور پی ٹی آئی حکومت سے اور ان سے کرتا ہوں کہ آئیں الیکٹورل ریفارم کریں, اور یہ 12 سیٹیں بھی آپ مین لینڈ آزاد کشمیر میں دیں, وہاں سے یہ لوگ الیکٹ ہوں. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں الیکشن کیمپین کیسے کی جاتی ہے. یہاں تو پٹواریوں نے, حکومتوں نے بیلٹ باکس بھر کر پی ٹی آئی والوں کو جتا دیے. کسی نے لندن سے بیٹھ کے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہے LA 34 کے اندر جو ان کے صاحب جیتے ہیں وہ پاکستان میں بھی نہیں رہتے, انہوں نے موٹی سی ڈونیشن دی ہے, وہ ریاض گجر صاحب ہیں اور وہ وہیں سے بیٹھ کے جیت گئے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں 22 مثالیں ہیں, میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا. چلے جواب لینے کی مہلت دے, وقت کم ہے, وقت کم ہے. حیدر بھائی جو ابھی آپ نے الزامات لگائے ہیں, جو باتیں کی ہیں, ان کا جواب لے لوں, لیکن ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے. عالیہ حمزہ صاحبہ آپ کے پاس آؤں گی, جواب دیجیے گا پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک جی. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن. عالیہ حمزہ, سینیٹر افنان اللہ, حیدر زمان قریشی صاحب. جی عالیہ حمزہ صاحبہ, الیکٹورل ریفارمز کی جو بات کر رہے تھے, کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کی جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اسی شو میں آپ لوگ کو دعوت دی ہے, کچھ خاطر میں لائیں گے؟
थैंक यू बिनेश ज़रा मैं तेज़ी से जवाब दे लूँ। सबसे पहले तो मुझे अफसोस हुआ है, हैदर साहब बड़ा अच्छा इनकी नॉलेज भी होता है, लेकिन आई वंडर कि ये भी मरियम बीबी की ट्वीट्स पढ़कर ये जवाब दे रहे हैं। मियाँ वाली में कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 वोटर्स थे, दोनों ने ये अपने वोट कास्ट नहीं किए। और मतलब ये तो मैं कहती हूँ ना, इनकी छोटी छोटी सी खुशियाँ यही कहकर ये अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। फिर मैं अपने भाई अपना हमारे जो सेनेटर साहब है इनकी तरफ आ जाऊँ। यकीन माने मैं कभी इस बात पर यकीन नहीं रखती थी, लेकिन अब मैं कहती हूँ नून लीग एक ऐसा दीमक है ना जो अच्छों का दिमाग चाट जाता है। या एक ऐसा, वो जो मरियम औरंगजेब कभी कभी कहती थी ना नवाज शरीफ नशा है, तो ये वाकई ही ऐसा नशा है कि लोग बहकी बहकी बातें करना शुरू हो जाते हैं। ये मैं आपको बता दूं, पहले तो आ जाए मरियम नवाज के ऊपर, मैंने क्यों बनी गाला वाला नशा करना शुरू कर दे। तो अगर आपको याद हो, अगर आपको तो याद हो पीडीएम पे देखिए, मेरी बात सुने, वो जो ग्लास से उठा के वो जो फिरती रही है ना, वो जो माई, अब मुझे लगता है देग उठानी पड़ेगी 2023 में उनको। सिंपल सी बात बता दूं, अगर आपको याद हो कि उन्होंने कहा था पीडीएम में लड़ाई होगी, आहा आहा हा हा हा, अब उन्होंने कहा था तौबा तौबा तौबा, ऐसी इबरतनाक शिकस्त, तौबा तौबा तौबा, इस जिल्लत से तो मुंह छुपाकर घर बैठ जाना चाहिए। तो वो तो भाई उनकी तो बात पूरी हो गई। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि नून लीग किस तरह से इस इबरतनाक शिकस्त के बाद आकर ऑनलाइन कह सकती है कुछ भी। फिर इन्होंने कहा जी मरियम नवाज तो जी बिल्कुल गैलेप का सर्वे आया, आईके सर जो है वो खान साहब वज़ीर आज़म साहब टॉप के ऊपर है, और मरियम नवाज। I'll get back to you. हाँ, आप जरा इनकी बात सुने, मैं आपको मुझे अब बात पूरी करने दें। ना जी आप पूरी करें। नहीं मुझे बात पूरी करने दें, मुझे बात पूरी करने दें। मैंने अफनान को कहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो ऑन द टॉप, वो ऑन द टॉप है, और मरियम बीबी जो है वो ऑन द लोएस्ट है। बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब से भी उनकी पॉपुलैरिटी कम है। अब मैं इनका ये बता दूं, ये जब बात करते हैं ना कि जी वोट तोड़े, लोगों को तोड़ा, अगर इनको याद हो सिर्फ 2 इलेक्टेबल्स, और बाकी सारे तो उन्होंने तो इनके टिकट लेने से इनकार करके वो तो जो है आजाद सीटों पर लड़ते रहे इनके लोग। फारूक साहब जो है, फारूक हैदर साहब के बेटे की वीडियोज हैं पैसे पकड़ाते हुए, इनके नोटों के ऊपर मरियम बीबी के उधर वो जो नोट निछावर करते हैं, वो आपने भी देखे थे, मैंने भी देखी थी। फिर ये जब बात करते हैं ना वोट पॉलिश करने की, आपको अजीब नहीं लगती बिनेश ये बात? आपको याद होगा शहबाज शरीफ और चौधरी ने सार भुरके पहन के जो गेट नंबर 4 से जाते थे 2013 से पहले, वो किस लिए जाते थे? 2013 के लिए। एक्चुअली ये इनकी जिसे कहना इट्स इन देयर ब्लड, इसलिए अच्छा, ये वक्त कम है आलिया, मुझे तो ये नहीं वक्त कम नहीं है। ना विनेश ना, मैंने तो नहीं नर्सरियों से, फौज की नर्सरियों से जो है सियासतदान आ रहे हैं, मतलब ये इन बयानात से ऑपोजिशन फौज को बदनाम करती है, या वजीर दाखिला इस तरह का बयान दे करके फौज को बेतौकीद करते हैं। नहीं मुझे तो जो मुझे इनकी जो है ना, इनकी बात का इसलिए होता है कि ये किस तरह एक गुड कॉप खेलता है, एक बैड कॉप खेलता है। चचा जान क्या करते हैं, भतीजी जान क्या करती हैं, वो जाकर आपने वो नहीं देखा नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर कि किस तरह से वो बॉटल पकड़ के इनके पीएमएल इनके लोगों ने जो सिपा सालार को किस तरह से वो कर रहे थे उनको, मतलब ये किस तरह की बातें करते हैं। 2018 से पहले आप अपने कैबिनेट फाइनल कर चुके थे, आप कोविड से पहले आखिरी फ्लाइट लेकर यहाँ पर आए थे लैपटॉप के आगे शेरवानी पहनने के लिए। ये बातें मत करें। 4 मिनट दिए मैं आपको 1 सेकंड, मैंने 10 मिनट बात सुनिए। मरियम नवाज पे मैं आखिरी बात, नहीं मैं जल्दी, क्योंकि उनकी ये जो है ना, मैं आज ऑन एयर उन पे ये मुझे किसी ने भेजा था और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूं उन्होंने भेजा, और मैं आपके प्रोग्राम से ऑन एयर बताना चाहती हूँ कि एक तो उनकी उम्र बुजुर्गाना, हरकतें बचगाना, दिमाग शैताना, हदफ मुल्की खजाना, चालें शर्ताना, खानदान गद्दाराना और बैरूने मुल्क ठिकाना। तो ये लोग आलिया औरत होके आप और नहीं करें, नहीं ये आपसे खातून होकर के आप इस तरह का बात कर रही हैं। अच्छा आपके पास तो इतनी दलीलें हैं, नहीं बचगाना, बुढ़ापा, ये वो ऐसी बातें छोड़ दें। ऑलराइट, अपना मैंने तो कहा ही नहीं है, मैंने तो मैंने तो उनको कभी फाइनल ब्रेक फॉर अफनान। आलिया I gave you 5 minutes in the segment. जी अफनान,
आलिया आपकी अपनी बहुत उम्र है, आप इस तरह की बातें ना किया करें। नो 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 लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि किसी की उम्र में बातें करें, ऐसे आपकी नहीं, अपनी उम्र अफनान देखें। नो 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 अफनान, नो पर्सनल अटैक्स, अपना इंसान अपनी नहीं शक्ल अफनान देखे, आप पार्टी पॉलिसी किसी पर और बात को कुछ कहेगा ही करें, नहीं। नो पर्सनल अटैक्स, नो पर्सनल अटैक्स। नहीं, इन्होंने बोला है, इन्होंने बोला है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ अफनान मना कि किया है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। जिसको मेरी बात तो सुनने दे, अगर इनको बहुत तकलीफ है मरियम नवाज से, तो ये अपनी शक्लें जाके देखें पहले, किसी और को कुछ कहने से Very पहले। bad. नहीं और ये किसी अफनान, और I को will कुछ not कहने put की this thing काबिल on नहीं air. रहेंगे। I will not allow this thing. Sorry, I will not allow this thing on air on my show. This is too personal and below the belt. किसी किस्म की पर्सनल कमेंट्स शक्लों पर, उम्रों पर, सीधी बात बीनर सलीम के प्लेटफॉर्म से ऑन एयर नहीं जाएंगे। मैं अपने ऑडियंस से माजरत खाऊं हूं जिन्होंने कमेंट्स देखे, क्योंकि हम लाइव शो चला रहे हैं, मेरे बस में होता, अगर रिकॉर्डेड होता तो मैं उनको कटवा देती। एंड नेक्स्ट टाइम के लिए तमाम पैनलिस्ट के लिए वार्निंग है, शक्ल, उम्र, किसी किस्म के कोई पर्सनल कमेंट्स अगर दिए जाएंगे तो बिल्कुल एंटरटेन नहीं होंगे। आपसे मैं कल मिलूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।